ओके सो लास्ट क्लास का समरी था कि इंटरेस्ट रेट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स. वन वाज रिस्क फ्री रियल रेट, second is inflation premium, and third is risk premium. Risk free real rate, inflation premium, risk premium. If you are investing in a place where there is no inflation and no risk, you want the risk free real rate. If you are investing in a place where there is inflation, you are going to suffer it, but no risk, you want risk free nominal rate. Risk free nominal rate. If you are investing in a place where there is no inflation but there is risk, there is no inflation but there is risk, you want the risk adjusted real rate. Risk adjusted real rate. And if you are investing in a place where there is inflation and there is risk, you want risk adjusted nominal rate. Risk adjusted nominal rate. ठीक है? नोट्स का फ्लो बताना प्लीज. आई थिंक LOS B चल रहा था. LOS B चल रहा था. कौन सा पॉइंट तक? मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम. 5 पॉइंट तक लिखे थे. मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम तक नोट्स लिखा गया है. ठीक है ना? ओके. इट्स नॉट पॉसिबल टू सी एज टू कौन कैसे करके बैठा है, बट इन द सेंस दैट बट प्लीज रिमेंबर इफ यू डू नॉट अटेंड द प्रीवियस क्लास, नेक्स्ट क्लास समझना डिफिकल्ट है. समझ गए? तो इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ क्लासेस गोइंग ऑन कि जब चाहे आ गए जब चाहे नहीं आए. ठीक है? You have to take a backup and then sit for the next class. Otherwise, it's not possible for me to communicate. तो for example, किसी का अगर first class है तो बहुत difficult है मेरा tuning होना. ठीक है ना? Okay. तो अपने 5th point तक complete किए थे. अब example ले रहे हैं तुम लोग का check करने के लिए ability. ठीक है? तो example. Example है yield on, yield मतलब return, yield on T-bills, yield on T-bills, yield on T-bills equal to 6%. Yield on T-bills equal to 6%. Next. Yield on T-bonds equal to 7.5%. Yield on T-bonds equal to 7.5%. ठीक है? Yield on T-bill 6%, yield on T-bond 7.5%. लिख दो. Calculate the relevant risk premium. Calculate the relevant risk premium. Calculate the relevant risk premium and name it. Calculate the relevant risk premium and name it. T-bills शॉर्ट टर्म होता है और T-bonds क्या होता है? लॉन्ग टर्म. T-bills आर शॉर्ट टर्म, T-bonds आर लॉन्ग टर्म. तो इन दैट केस रिस्क प्रीमियम का नाम क्या है? मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम. ठीक है? लिख देना सॉल्यूशन. T-bills आर शॉर्ट टर्म, T-bills are short term while T-bonds are long term. T-bills are short term while T-bonds are long term. T-bills are short term while T-bonds are long term. Dash. Both are क्या liquid या illiquid? Liquid. Treasury securities liquid होते हैं. Both are liquid and both are default free. Default free word is okay? Both are default free. पैसा डूब नहीं सकते. Both are default free. Full stop. So the difference in yield that is 1.5%. The difference in yield that is 1.5%.
The difference in yield, that is 1.5%, represents what? Maturity risk premium. Represents maturity risk premium. Maturity के कारण different है. Maturity risk premium. Maturity risk premium. Next example. Yield on tips 3%. Yield on T-bills 5.2%. What does the difference represent? Inflation premium. लिख देना, what does the difference represent? What does the difference represent? What does the difference represent? तो आंसर है इन्फ्लेशन प्रीमियम, बिकॉज टी बिल्स में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, उसका रिटर्न इज व्हाट? रियल. और टी बिल्स में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं है. इफ यू बाय टी बिल्स यू विल गेट 5.2%, दैट्स इट. इन्फ्लेशन हुआ खुद से है ना. इफ यू बाय टिप्स, in that case you will get 3% plus inflation. So don't worry about inflation. So 3% is real, 5.2 is what? Nominal. Difference क्या है? Inflation. बाकी कोई चीज़ का difference है क्या? नहीं. दोनों short term ही होते हैं, दोनों liquid होते हैं, दोनों default free है. So there is no default risk premium, there is no maturity risk premium, there is no liquidity risk premium. ठीक है ना? Okay. Next example. Yield on agency securities guaranteed by government, dash 6.4%. Yield on treasury securities 5.1%. Next line. Assuming both are of the same maturity. Assuming both are of the same maturity. Assuming both are of the same maturity, comma, what does the difference represent? Liquidity risk premium. What does the difference represent? डिफॉल्ट का स्कोप नहीं है, पहला वाला भी गारंटीड है. जो एजेंसी सिक्योरिटीज वो लिखा है गारंटीड बाय गवर्नमेंट, और ट्रेजरी तो गवर्नमेंट इशू की है, तो दोनों में डिफॉल्ट का स्कोप नहीं है. बट ट्रेजरी इज लिक्विड, एजेंसी इज लेस लिक्विड, सो डिफरेंस इज व्हाट? लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम. ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट डज द डिफरेंस रिप्रेजेंट. आंसर है लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम. एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 में नया चीज है, सुन लेना. क्या? सपोज अपने कोई प्रोजेक्ट करने वाले, वी आर गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट. दैट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एंड ऑब्वियसली विल सेल इट. लेट्स इग्नोर द प्रोडक्शन कॉस्ट. वो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट ये सब लगेगा एक बार इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन समथिंग एल्स. Let's focus only on the sales revenue. Sales revenue जो बेच के आएगा. We expect to sell 1000 units. डिस्कस हो रहा है, do not copy. 1000 units सेल करेंगे एक साल बाद. ठीक है, 1000 units. Right now the price is 40 per unit. Right now the price is 40 per unit. But in 1 year there will be inflation of 5%, because of which we will be able to sell at 40 or 42. I hope it's okay. The story is okay. You're going to produce and sell a commodity. 1000 units is your projected selling units after 1 year. The selling price today is 40 per unit, but due to inflation of 5%, you'll be able to sell at 42 per unit. Okay? So in that case, the statements which I am saying one by one, these statements are true or false. सोच के बताना. Statement number 1.
the project is expected to generate a cash flow of 42,000 after 1 year. True? 42,000 after 1 year. दूसरा statement, the project is expected to generate a cash flow of 40,000 after 1 year in terms of today's purchasing power. ये जो second language था ना, 40,000 after 1 year in terms of today's purchasing power. Okay, this is supposed to be understood. दोनों statement correct है. कोई बोले 42,000 आने वाला है, एकदम सही बोल रहा है, 1000 इंटू 42 42,000. पर जब उस 42,000 से तुम चीज खरीदने जाएगा बाजार में, तो क्या सामान का दाम, बाकी चीजों का दाम सेम है या बढ़ चुका है? बढ़ चुका है. तो विद दैट 42,000 you will not be able to buy the goods which you can buy of 42,000 today. You will actually be able to buy goods worth 40. Goods worth 40. So in real terms वो जो 42 आ रहा है उसका purchasing power तो 40 है. वो जो 42,000 आ रहा है उसका purchasing power तो 40,000 है ना. So it is correct to say that, sir, this project will generate real cash flow of 40,000. How much? 40. Real cash flow 40,000. Nominal cash flow of 42,000. ठीक है? तो रियल कैश फ्लो 40,000 आने वाला एकदम करेक्ट है. आज के परचेसिंग पावर में वो जो 42 आने वाला है उसका वर्थ तो 40 ही है. ठीक है? बिकॉज 42,000 डिवाइड बाय 1.05 क्या होता है? 40,000. 42,000 को 5% इन्फ्लेशन हटाए, इट इज व्हाट? 40,000. तो 40,000 इज रियल, 42 इज व्हाट? नॉमिनल. ठीक है? तो ओके, लिखना प्लीज. एक सेकेंड और इसको जस्ट बढ़िया करने के लिए. तो 40 और 42,000 आपको समझ में आ गया. ठीक है ना? अब सपोज जो रियल रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मैंने रिस्क एडजस्टेड लिखा है बिकॉज जनरली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं दे आर रिस्की और दे आर नॉट रिस्की. एनी प्रोजेक्ट, द फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट सर्टन, दे मे गो अप एंड डाउन, दैट इज रिस्क. कोई भी प्रोजेक्ट, कॉमन सेंस सजेस्ट दैट सर कोई श्योर थोड़ी है आप 1000 यूनिट बेचेंगे, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है. दैट्स कॉल्ड रिस्क. तो रिस्क एडजस्टेड रेट लिखा मैंने और उसके पहले क्या वर्ड लिखा? रियल. रियल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन. ठीक है ना? तो ये रिस्क एडजस्टेड रियल. ठीक है ना? वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपना जो है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दे सपोज दैट इज 11%. वी वांट 11% रिटर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. 11%. अगर 100 लगाए तो 111 चाहिए. 100 लगाए तो 111 चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टुडेज परचेसिंग पावर या देन परचेसिंग पावर? टुडेज. रियल है. रियल. अगर 100 रुपया लगाए तो 111 चाहिए आज के परचेसिंग पावर पे. ठीक है? रियल है ये. और सपोज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इक्वल टू व्हाट? सपोज 4%. हाउ मच? 4%. सो नॉमिनल टर्म्स में हाउ मच डू यू वांट? 15% यू वांट नॉमिनल टर्म्स में. किस तरह? मेरे को 11% चाहिए था अगर इन्फ्लेशन का चिंता नहीं होता तो, पर इन्फ्लेशन अगर है तो मेरे को 11 4 क्या चाहिए? 15. तो लास्ट क्लास डिस्काउंट रेट का बात किए थे ना. इंटरेस्ट रेट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो डिस्काउंट रेट इज यूज टू पुल समथिंग like something divide by 1 plus r to know how much we are willing to put today. ठीक है? तो in that case there are two things that are eligible for pulling and both are correct. 42,000 can be pulled back 1 year. 40,000 can be pulled back 1 year. Both are correct. You all said कि साहब जो 42,000 का स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो भी सही है, जो 40,000 बोल रहे हैं वो भी सही है. तो दोनों को पुल करने से आज आंसर क्या आना चाहिए? सेम. वेदर आई पुल 42, सॉरी इन्फ्लेशन 5 था ना ऊपर, तो आई हैव टू राइट 5. ठीक है? इन्फ्लेशन तो यहाँ 5 लिखे थे तो आई कांट मेक इट इनकंसिस्टेंट. इन्फ्लेशन 5 है तो 11 5 क्या फीलिंग आ रहा है? 16. तो मैं बोल रहा था 42 को पुल करना है या 40 को पुल करना है, द प्रेजेंट वैल्यू शुड बी सेम. कहने का मतलब बताइए ना सर, इस प्रोजेक्ट में जो पैसा आने वाला है 1 साल बाद उसके बदले आज आप कितना लगाने को तैयार है? ठीक है? तो इन दैट केस आई वॉन्ट टू डू 40,000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर. I want to do 42,000 divide by 1 plus r. Correct? ठीक है? The answer should be same. 40,000 और 42,000 में से कौन सा रियल है? ये रियल है. It does not contain inflation. This is what? Nominal. It contains inflation. Therefore the rule is ये further elaborate होगा but अभी मेरे को बोलना जरूरी था. The rule is real cash flow got to be pulled at real rate. Nominal cash flow got to be pulled at nominal rate. The nature of the cash flow and the nature of the discount rate should be same.
nature of the cash flow and nature of discount rate should be what? Same. Real cash flow, real rate, nominal cash flow, nominal rate. Therefore, 40,000 should be pulled at which rate? 11%. While 42,000 should be pulled at what rate? 16%. Okay? However, when we do the maths, the answer is not exactly the same. 40,000 by 1.11. Kelsey, please. 40,000 divided by 1.11. 36,036. 36,036 अप्रॉक्स आ रहे हैं, ठीक है ना? और वो जो 42,000 डिवाइड बाय 1.16, 42,000 डिवाइड बाय 1.16 क्या? 36,206 आ रहे. हमने किया है 42,000 by 1.16. This difference of 36,036 and 36,206 is not because of approximation. It is a mistake that we have done. The mistake is that I have not taught it till now. Now I am hinting upon that. Is that अगर आपके पास 100 रुपये है और आप बोले सर मेरे को 111 एक साल बाद चाहिए अगर इन्फ्लेशन का चिंता नहीं है तो, पर अगर 5% इन्फ्लेशन होने वाला है तो आप बोल रहे हो नहीं सर मेरे को 5% और चाहिए, 5% और चाहिए. तो 100 के बदले तुमको 111 चाहिए था, पर अब 5% इन्फ्लेशन सोच के तुम बोल रहे हैं 5% और चाहिए. तो 5% और जो है 5% ज़्यादा किस पे चाहिए? 111 पे, 111 पे, नॉट 100 पे. So when we are doing 11 plus 5 equal to 16, if you think 11% of 100 is 11, 5% of 100 is 5, but actually you want 5% on 100 or 111? 111. So the mistake is that we missed out 11 पे 5%. 11 पे 5% miss हो गया, ठीक है? तो by doing 11 plus 5, 16 is wrong. 11 and 5 does not make a 16. 11 and 5 is more than 16. Okay? वो जो ब्याज पे ब्याज बोलते हैं ना, 11 पे 5 is more than 16. ठीक है? तो it's 11 plus 5 plus 5% of 11. What is 5% of 11? 0.55. 0.55 होता है. 5% of 11 is 0.55. So in that case, the actual answer is 16.55. What is it? 16.55 is the aggregation of 11 and 5. Okay? To a simple human mind, 11 and 5 seems to be 16. But if you go to accuracy, it is not 16, it is 16.55. ठीक है? तो if you do that, what is the factor of 16.55? 1.1655. Factor माने 1 plus r. Factor माने 1 plus r. 16.55 का factor is 1.1655. Calci, 42,000 divided by 1.1655. 42,000 divided by 1.1655. What is it? 36,036. 36,036. तो इस एग्जाम्पल में बहुत वेट है. ये एग्जाम्पल 2-3 चीज बता रहे हैं. पहला चीज ये बताया कि सर आपने जो डिस्काउंट रेट वर्ड इंट्रोड्यूस किया था ना, उसका मतलब था कोई भी चीज अगर फ्यूचर वैल्यू खड़ा है और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसको डिवाइड बाय 1 plus r करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर r वाज कॉल्ड द डिस्काउंट रेट. आई होप इट्स ओके विथ यू. अब बात है सर ये जो डिस्काउंट रेट है, ये डिस्काउंट रेट अपने कौन सा यूज करेंगे? उसका जवाब है डिपेंड करता है जो फ्यूचर वैल्यू कैसा है. अब 2-3 बार स्टोरी रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा हैवी लगेगा, बट इट्स गुड टू रिसीव इट इन दैट पोइट्री. इफ द फ्यूचर कैश फ्लोज आर रिस्क फ्री, व्हाट आर दे? रिस्क फ्री माने पक्का 42,000 आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए पक्का आएगा. इन दैट केस द डिस्काउंट रेट गॉट टू बी रिस्क फ्री. If the future cash flows are risky, are what? Risky, then the discount rate got to be risk adjusted. If the future cash flows are nominal with inflation, discount rate got to be what? Nominal. If the future cash flows are real, the discount rate got to be what? Real. When we do the other topics, if the future cash flows are in foreign currency, if the future cash flows are in, I'm doing this project in US, तो $42,000 आने वाला है. ठीक है? In that case, the discount rate got to be in dollar terms. In what? Dollar terms. If the future cash flows are in rupee terms, the discount rate got to be in what? Rupee terms. इतना रिपीट करने का बात बोलना ये चाह रहे थे, पूरे के पूरे फाइनेंस में the nature of the cash flow and the nature of the discount rate got to be what? Same. ठीक है? Whether it's risk wise, whether it's inflation real wise, whether it's currency wise. Okay? It has to be same, and many places, level 1, level 2, level 3, or even after that, you will find that this particular point comes into picture. But if it's such an important point, iska matlab it's going to be revisited again and again. Okay? Because we need more and more examples to just
internalize it. It will not get 10 upon 10 into your head right now. You will entertain, हाँ क्या बोले समझ गए, but you need more time into it, which along with time we'll see. ठीक है, तो टेक्स्ट में इस पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है LOSB में, टेक्स्ट में बाद में काम आता है, तो मैंने अभी बता दिया. तो इन दैट केस आपके एक बार माइंड में हिट किया, मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, उसके बाद वी विल वेट फॉर दिस टू रीविजिट अस अगेन एंड अगेन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो कि नेचर ऑफ द कैश फ्लो एंड नेचर ऑफ डिस्काउंट रेट शुड बी व्हाट, सेम. उसके अलावा और एक चीज यहां पता चला क्या, कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट है, एक है RF रियल, क्या है RF रियल, एक है इन्फ्लेशन प्रीमियम. ठीक है ना, इन दोनों को अगर मिलाना है, मिलाना तो मिलाने का दो तरीका है, एक है प्लस और एक है इनटू. एक है एडिटिव मॉडल और एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. फिगर्स लिख रहा हूं. दिस इज सपोज जो अपना था 11, दिस इज व्हाट 5. इफ यू एडिटिव मॉडल 11 प्लस 5 इज व्हाट 16. बट इफ यू डू मल्टीप्लिकेटिव मॉडल तो कैसे किया जाता है, सुनना. 1.11 into 1.05 minus 1. This is not a formula, this is a feel दे रहा हूं. सर 1 रुपया के बदले 1.11 चाहिए, 1 रुपया के बदले 1.11 चाहिए. फिर जो आपको 5% चाहिए वो 1 पे की 1.11 पे, 1.11 पे. ठीक है, तो 1.11 into 1.05 is what you require after 1 year. बट देन इसमें 1 रुपया तो प्रिंसिपल था, 1 रुपया क्या था प्रिंसिपल, उसको माइनस करूंगा तो ही तो ब्याज आएगा. 1 रुपये क्यों हटाए लास्ट पे, समझ गया. वी डिड फैक्टर वाइज ना, 1 रुपया को लेके चले, 1 रुपया के बदले 11% तो 1.11, अब उसके ऊपर 5% और तो इंटू 1.05, फिर एक हटाएगा तभी तो ब्याज आएगा, -1. ठीक है, तो अ प्रूडेंट स्टूडेंट कैन ऑल्सो लुक एट दिस एज 105% ऑफ 111 माइनस 100. क्या बोला, 105% ऑफ 111, 100 के बदले 111 चाहिए था, फिर उसके ऊपर 105% और माइनस व्हाट 100. अंडरस्टूड? तो इट्स फैक्टर इनटू फैक्टर -1. व्हाट्स द टोन? फैक्टर इनटू फैक्टर -1. ठीक है, दैट्स मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. पूरे स्टडीज में हर जगह ही हो सकता है, यू विल एक्नॉलेज इट नाउ व्हेन वी टीच इट दिस वे, दैट देयर इज अ फाइट बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी. Simplicity and accuracy. Simplicity is very intuitive, it goes naturally into the mind. Accuracy is a bit difficult. तो 11 और 5 बोलते ही लोगों के फीलिंग आता है 16. वो इंट्यूटिव है, इट हिट्स द माइंड. और accuracy is 1.11 into 1.05 minus 1. ठीक है, 16 point whatever percent. 16 point क्या था, 55%. अपने करिकुलम में अलग अलग ऑथर्स है, अलग अलग ऑथर्स. कोई ऑथर सिंप्लिसिटी को रिस्पेक्ट किया है, कोई ऑथर एक्यूरेसी को रिस्पेक्ट किया है. तो अकॉर्डिंगली अपने को ध्यान रखना पड़ता है किस ऑथर ने क्या बोला है, अकॉर्डिंगली एग्जाम में क्या टेस्टेबल है. तो क्यूएम वाला जो ऑथर है, ये क्यूएम चल रहा है अभी, क्यूएम वाला ऑथर बोला है जनरली अपने एडिटिव मॉडल फॉलो करें. कौन सा, एडिटिव. पर क्यूएम वाला ऑथर ये बोला है कि ऑल्दो मैं तुम लोगों से फैक्टर इनटू फैक्टर नहीं करवा रहा हूं, पर अगर आप ये जानते नहीं हो कि एक्चुअल 16 से ज्यादा आएगा, वो गलत है. यानी कि करना 11 + 5 16 ही है फॉर द पर्पज ऑफ क्यूएम, पर ये जानना कि 11 + 5 सही है या अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स है, ये जरूरी है. सही 16 से ज्यादा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ही इज सेइंग दैट ओके डोंट डू दैट 1.11 into 1.05, बट एटलीस्ट नो दैट अगर वो करते ना ब्याज पे ब्याज तो क्या आता ज्यादा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो थियरी में जब वो मल्टीपल चॉइस आएगा, ही मे कॉर्नर यू इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट रिस्क फ्री रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, इज इट एग्जैक्टली इक्वल टू रिस्क फ्री नॉमिनल रेट? नो, इट इज व्हाट, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू रिस्क फ्री नॉमिनल रेट. द एग्जैक्ट रेट इज व्हाट, हायर. इज इट ओके? बाय द सेम लॉजिक लेट्स सी, अगर नॉमिनल रेट 18% है, नॉमिनल रेट 18% है, इन्फ्लेशन 7% है, नॉमिनल रेट 18 है नॉमिनल और इन्फ्लेशन 7 है, मेरे को रियल निकालना है, रियल. तो 18 में से 7 हटाना है, 18 में से 7 हटाना है. हटाने का बेस्ट फील इज माइनस, जो आ भी चुका है 11, मन में आ चुका है 11. ये जो आया ये सिंप्लिसिटी था. ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्यूरेट. जैसे मिलाते समय ऐड करना अलाउड नहीं है, वैसे हटाते समय माइनस करना अलाउड नहीं है. तो मिलाते समय सही तरीका क्या है, मल्टीप्लाई. क्या, मल्टीप्लाई. रेट या फैक्टर, रेट या फैक्टर, फैक्टर. वैसे ही हटाते समय क्या, डिवाइड. रेट या फैक्टर, फैक्टर. मतलब
18% का मतलब सर ₹1 1.18 बनता है, ठीक है। बट इस 1.18 में 1.07 मल्टीप्लाइड है, मिला हुआ है, तो 1.07 क्या करेंगे, डिवाइड। पर ये जो आया, ये आर आया कि 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, उसमें से 1 क्या होगा, लेस। क्या आ रहा है कैलसी, 1.18 डिवाइड बाय 1.07 जो आया -1, 10.28%। कोई कोई लोग कैलसी को कमती डेसिमल प्लेस में कर रखे होंगे, तो उनका हो सकता है 0.1 आ गया हो। कैलसी को डेसिमल प्लेस बढ़ा दो ना। सेकेंड कैलसी का डेसिमल प्लेस कैसे बढ़ाते थे, सेकेंड डेसिमल, उसके बाद 4 एंटर, सेकेंड डेसिमल 4 एंटर, सेकेंड डेसिमल 4 एंटर, CEC हो गया सबका। देन यू कैन ट्राई वंस अगेन, 1.18 डिवाइड बाय 1.07, 1.18 डिवाइड बाय 1.07 इक्वल टू जो आया -1, तो इक्वल टू आई थिंक आ गया होगा 0.1028 आया। 0.1028 माने 10.28%, 0.1028 इज 10.28%, ठीक है। तो यानी कि मैं सोचा एक एग्जांपल में, ये 2 एग्जांपल में कवर कर रहा हूं। पहले एग्जांपल में पहले वो जो एडिटिव और माइनस मॉडल वाला बता दे रहा हूं, और दूसरे एग्जांपल में उसके बाद मैं वो जो DCF पुल कर रहा था ना कैश फ्लो को, वो बता रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर व्हाट 4 लिखो। रियल रेट 8%, इन्फ्लेशन प्रीमियम 3%, कैलकुलेट नॉमिनल रेट, कैलकुलेट नॉमिनल रेट। तो विदाउट इन्फ्लेशन 8 चाहिए, पर इन्फ्लेशन के कारण 3 और चाहिए। कैलकुलेट नॉमिनल रेट, तो लिख रहे हैं मेथड 1, नॉमिनल रेट, और ये सिंबल दे रहा हूं विच स्टैंड्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ना, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो नॉमिनल रेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन, तो इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 11, बट 11 इज अप्रॉक्स, ओके। एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव यहां पे फिर भी लिख दे रहे अप्रॉक्स, 11 is approx. Method 2, method 2, nominal rate equal to 1 plus real rate into 1 plus inflation whole thing -1। तो 8% मतलब 1.08, ₹1 के बदले 1.08, पर सर इस पे 3% और चाहिए, तो इंटू 1.03, पर इस पे तो ₹1 मिला हुआ है प्रिंसिपल, तो वो हटाना पड़ेगा, -1, 1.08 इंटू 1.03, द होल थिंग -1, ओके। दिस इज कमिंग टू 0.1124, that is 11.24%, 11.24%, ठीक है। जो और नेचुरल सोचता है स्टूडेंट, उसके लिए वो बढ़िया है कि 3% ऑफ 8 क्या होता है, 0.24, 8 और 3 11 तो होता ही है, वो एक्स्ट्रा क्या छुट गया, 3% ऑफ 8, दैट्स 0.24, वही तो छुट रहा है। तो यू विल ऑल्सो लाइक थिंकिंग दैट वे, वो 0.24 वाला पार्ट छुट रहा था, बिकॉज अपने 100 पे लगा दे रहे थे, पर 8 पे भी तो आएगा, ठीक है ना। बट कैलकुलेशन वाइज फैक्टर वाइज बेटर है, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, क्या टोन है, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, हटाते समय क्या टोन है, फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर -1, ठीक है। फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इट। फैक्टर माने 1 प्लस आर। एग्जाम्पल, रिस्क फ्री रेट 7%, risk adjusted rate 12%, रिस्क फ्री रेट, रिस्क एडजस्टेड रेट। क्वेश्चन में क्या रियल या नॉमिनल कुछ बोला है, नहीं, इसका मतलब डोंट थिंक अबाउट दैट,
या तो ये दोनों रियल है या दोनों क्या है, नॉमिनल। उसका बात नहीं चल रहा है, आप उसको शन कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज हर सम में रहेगा। तो दिस सम इज नॉट फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन। कैलकुलेट रिस्क प्रीमियम, कैलकुलेट रिस्क प्रीमियम, बिकॉज 12th में तो मिला हुआ है ना रिस्क प्रीमियम। 12th तो रिस्क एडजस्टेड है, जबकि 7th तो रिस्क फ्री था। तो रिस्क प्रीमियम, तो फर्स्ट फीलिंग क्या आ रहा है बोर्ड को देख के, 5। दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स वेरी नेचुरल, नेचुरल थिंग्स आर रिस्पेक्टेड। 5, बट ये पता है कि ये फीलिंग वैसे मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट निकालने के लिए वो हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 7 में 5 मिलाएं, 7 में 5 मिलाएं तो 12 होता है कि 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा, समझ गया। इसका मतलब 7 में पक्का 5 नहीं मिला है, 4 पॉइंट कुछ मिला है, तभी तो 12 आया। अगर 7 में 5 मिलता तो 12 से ऊपर आ जाता ना। तो वो जो मिला हुआ है 12 में, वो 5 नहीं है, 4 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो दैट्स द इंट्यूशन, लिख दो। मेथड 1 रिस्क प्रीमियम, मेथड 1 रिस्क प्रीमियम इक्वल टू 12 माइनस 7, मैंने अप्रॉक्स है। risk premium approximately equal to 12 minus 7 equal to what? 5% approx. 5% approx. 5% approx. Method 2, risk premium equal to 1.12 divide by 1.07 minus 1. 1.12 divide by 1.07, the whole thing minus 1, क्या? 4.67%, 4.67%। तो 7 में 4.67 मिला तो जाके 12 आया। ठीक है, 4.67% रिस्क प्रीमियम। वहीं पे नोट, सो द वेरियस components of interest rate, the various components of interest rate, so the various components of interest rate, the various components of interest rate can either be incorporated, in an additive model, in an additive model, ब्रैकेट में अप्रॉक्स, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ब्रैकेट में एग्जैक्ट, फुल स्टॉप। we normally use, full stop के बाद, we normally use additive model, full stop। The tone of the multiplicative model is dash, next line, factor into factor minus 1, factor into factor minus 1। फिर से एग्जाम्पल, पैरा चेंज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है रिस्क adjusted nominal rate 13%, inflation premium 4%, risk premium 5%, calculate risk free real rate,
ठीक है, कैलकुलेट करो प्लीज, दोनों दोनों करो, मेथड 1 मेथड 2, 2 बार निकालना है। रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट 13 है, इन्फ्लेशन प्रीमियम 4 है, रिस्क प्रीमियम 5 है। आपको रिस्क फ्री रियल रेट निकालना है 2 बार, मेथड 1 या मॉडल 1 और मॉडल 2 से। ठीक है, मैथ से इंपॉर्टेंट फील है कि भाई नॉमिनल दिया हुआ रियल निकालने के लिए इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा, रिस्क एडजस्टेड दिया हुआ है रिस्क फ्री निकालने के लिए रिस्क प्रीमियम हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मन में वो आना चाहिए रादर देन द नंबर्स कि 13 में से 4 भी हटाना पड़ेगा, 13 में से 5 भी हटाना पड़ेगा। तो मॉडल 1 का आंसर तो मुझे वानी आ गया। व्हाट इज द आंसर? 4%। ठीक है, जो मॉडल 1 है उसका तो आंसर 13 - 4 - 5, 13 - 4 - 5। 13 में से 4 हटाए तो क्या आया? नाम बोलो। 13 में से 4 हटाए तो नाम क्या आया? रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। वो पता होना चाहिए कि 13 में से 4 हटाए तो रिस्क एडजस्टेड रियल आया, उसके बाद 5 हटाए तो क्या आया? रिस्क फ्री रियल। ठीक है, तो 4% आंसर आ गया। और मेथड 2 में फैक्टर 1.13 ऊपर और नीचे में 2 फैक्टर क्या क्या? 1.04 और नीचे में ही 1.05 और पूरे में से क्या? -1। ओके, 1.13 डिवाइड बाय 1.04 डिवाइड बाय 1.05, द होल थिंग -1। ट्राई कर लो कैल्सी पे, बिकॉज ये सब में कैल्सी में कुछ बताने का नहीं है, नॉर्मल स्टफ है। दैट्स ओके, यू कैन डू दैट। वो 13 में से 4 हटाएंगे तो ही सेइंग सर वी डू 1.13 बाय 1.04 -1, तो वी गेट दैट रेट, और उसमें से 5 बाद में हटा देंगे। टाइम वेस्टेज है ना। रेट अलग आ रहा है बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन, वो बीच वाले स्टेज में अप्रॉक्स आ गया ना। हाँ, बोथ आर एक्सेप्टेड, तो मल्टीपल चॉइस है, क्लोजनेस पर डिपेंडेंट है। लॉजिकली इस सब में एक साथ करना चाहिए था। ठीक है ना। 1.13 डिवाइड बाय 1.04 इंटू 1.05, द होल थिंग -1। व्हाट इज द आंसर? 3.48%। 3.48% अप्रॉक्स। 3.48% अप्रॉक्स उसलिए नहीं बोला, आई सेड अप्रॉक्स बिकॉज ये कैलकुलेशन तो 3.47 कुछ आया होगा ना। माने आई एम मेंशनिंग अप्रॉक्स ओवर हियर बिकॉज ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, नॉट बिकॉज ऑफ द मेथड। मेथड इज एग्जैक्ट। ओके, ठीक है, एक बार बुक में आने, ओपन द बुक। बुक में पेज नंबर 29, बुक में पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2, 29 क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ? मेरा बुक पेज नंबर अलग है। हाँ, दैट्स ओके। एक मिनट, कौन सा बुक है तुम लोग के पास? ओके, दैट्स ओके। आप लोग का शायद पेज नंबर 24 है। पेज नंबर 24 निकाल लो। पेज 24 है आप लोग के यहाँ। पेज नंबर 24 जहाँ से होमवर्क क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है ना, वहाँ से। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मिस मैरी हैज जस्ट इनहेरिटेड सम मनी एंड वांट्स टू सेट सम ऑफ इट असाइड फॉर अ वेकेशन एट हवाई 1 year फ्रॉम टुडे। हर बैंक विल पे हिम, लैंग्वेज मिस्टेक है, 5% इंटरेस्ट ऑन एनी फंड्स ही और शी डिपॉजिट्स। ठीक है, 5% इंटरेस्ट है। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन हाउ मच ऑफ द मनी मस्ट बी सेट असाइड एंड हेल्ड फॉर द ट्रिप। तो आज
she will deposit some money in the bank to earn what 5% so that she gets the amount for the trip. ठीक है तो बोल रहे in order to determine how much money must be set aside and held for the trip, she should use 5% as what? Discount rate. Because whatever money she requires after 1 year, she has to deposit today. That divide by 1.05. That divide by 1.05. Therefore, 5% is used as what? Discount rate. Okay? 5% is a discount rate. You're wanting to find out the present value of what you will require in future. Question number 3. Which one of the following statement best describes the components of the required interest rate on a security? The nominal risk-free rate components कौन सा है? Nominal risk-free rate, expected inflation, default risk premium, liquidity premium, and a premium to reflect risk associated with maturity. तो इसमें तो nominal risk-free rate जब बोल दिया था तो expected inflation तो double counting हो गया. जब nominal risk-free rate बोल दिया तो expected inflation तो double counting है, because nominal risk-free rate में तो inflation मिला हुआ है. Wrong है. B. Real risk-free rate, default risk premium, liquidity premium, and a premium to reflect the risk associated with maturity. यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? Inflation premium. Inflation premium छूट गया. C. The real risk-free rate, expected inflation, default risk premium, liquidity premium, and a premium to reflect the risk associated with maturity. This is what? True. Okay. C is the answer. Components of interest rate. Number 4. T-bills. Tips नहीं, T-bills can be thought of as. तो टी बिल्स में पहला वर्ड ट्रेजरी है, यार ये बात तो पक्का है सर. रिस्क फ्री. क्या? रिस्क फ्री. वो शॉर्ट टर्म भी होता है, कोई भी रिस्क नहीं है उसमें. डिफॉल्ट भी नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क भी नहीं है, और मेच्योरिटी रिस्क भी नहीं है. बिकॉज ट्रेजरी मतलब नो डिफॉल्ट प्लस लिक्विड. ठीक है ना, तो वो दोनों गया. और टी बिल्स मतलब शॉर्ट टर्म, तो इसका मतलब उसमें मेच्योरिटी रिस्क भी नहीं है, एकदम रिस्क फ्री रेट है. पर क्या वो अलग से इन्फ्लेशन देगा? नहीं. यानी वो इन्फ्लेशन का प्रोटेक्शन नहीं देगा. तो जो देगा वही नॉमिनल है, जो वो देगा वही नॉमिनल है. टी बिल्स कैन बी थॉट ऑफ एज व्हाट? नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, बिकॉज दे कंटेन इन्फ्लेशन प्रीमियम. दे कंटेन मतलब दे विल नॉट गिव यू इन्फ्लेशन सेपरेटली. अगर बोल रहा है 5%, तो भाई 5 के अंदर ही इन्फ्लेशन प्रीमियम है. जबकि टिप्स क्या बोलते हैं? अगर वो बोलते हैं 5, तो बोलता है 5 प्लस क्या? इन्फ्लेशन. ठीक है. तो टी बिल्स कैन बी थॉट ऑफ एज नॉमिनल रिस्क फ्री रेट बिकॉज दे कंटेन व्हाट? इन्फ्लेशन प्रीमियम. ठीक है. तो आंसर इज 4 का ए. नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ प्रीमियम दैट कॉम्पेंसेट इन्वेस्टर्स फॉर बियरिंग रिस्क? इन्वेस्टर्स फॉर बियरिंग रिस्क. तो बियरिंग रिस्क के लिए तो जनरल बोल दिया. दे शुड हैव सेड विच रिस्क. डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम होना चाहिए, आई थिंक. ठीक है. डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, बिकॉज वो रिस्क को डिफॉल्ट के सेंस में यूज कर रहे हैं. एक बार चेक करो आंसर पीछे. सी आंसर दिया हुआ है ना. सी इज नॉट अ वर्ड एट ऑल. ओ लीस्ट लाइकली. आई डेंट रीड द वर्ड, सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ प्रीमियम? आंसर एकदम, क्वेश्चन एकदम करेक्टली फ्रेम्ड है. मैं लीस्ट लाइकली मिस कर गया था. दैट कॉम्पेंसेट्स इन्वेस्टर फॉर बियरिंग रिस्क. तो तुम्हारे नॉलेज के अनुसार 3 तो रिस्क है. डिफॉल्ट के बदले डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, मैच्योरिटी के बदले मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी के बदले लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम. बट पे बैक प्रीमियम नाम का तो कोई कंपोनेंट नहीं है ना. तो आंसर क्या होगा? सी. ठीक है. द क्वेश्चन इज करेक्ट. ठीक है. नंबर 5 का आंसर इज सी. देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड पे बैक प्रीमियम. क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर जा रहे. क्वेश्चन नंबर 1. Alpha Research has been conducting investor polls for AY Bank. They have found that most investors are not willing to tie up their money in a 1-year certificate of deposit unless they receive at least 1%, bracket में 1.5% more than they would on an ordinary savings account. तो यानी कि दो सेंटेंस चल रहा है. ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट पे अ सर्टेन रेट. ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट जो अपने बैंक में रखते हैं, दे पे अ सर्टेन रेट ना. उसमें लिक्विडिटी होता है कि नहीं होता है? सेविंग्स अकाउंट जो बैंक में होता है उसमें चाहे तो पैसा जब चाहे उठा सकते हैं. यस. सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो लिक्विड. तो बोल रहे सेविंग्स अकाउंट के बजाय अगर तुम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले रहे, कौन सा? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है उस पर पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा. जैसे 1 ईयर का सीडी लिया तो 1 ईयर तक पैसा वापस नहीं मिलेगा. 2 ईयर का सीडी लिया तो 2 ईयर तक पैसा वापस नहीं मिलेगा. जबकि सेविंग्स अकाउंट में जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं. तो ये क्या बोल रहा है?
ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले हम लोग 1 ईयर सीडी में तब पैसा लगाएंगे अगर 1% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। किसके मुकाबले? सेविंग्स अकाउंट। यानी सेविंग्स अकाउंट में 3 है तो 1 ईयर सीडी में क्या होना चाहिए? 4। और ब्रैकेट में लिखा हुआ था अगर 2 ईयर के लिए पैसा ब्लॉक करे, किसके लिए? 2 ईयर, तब तो इन दैट केस हम लोग कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 1.5%। ठीक है, तो सेविंग्स के बदले 1.5% एक्स्ट्रा। इफ द सेविंग्स अकाउंट रेट इज 3, तो रेट सब समझ में आ गया, 3 + 1 4, वहां पे क्या? 4.5। and the bank wants to raise funds with 2 year CDs. With what? 2 year CDs. The yield must be at least what? 4.5%. 4.5%. ठीक है, तो 4.5% ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स रिक्वायर्ड रेट। यहां पे कुछ पुल नहीं कर रहे, यू नॉट पुलिंग समथिंग। कितना पैसा बाद में चाहिए, उसके बदले आज कितना, तब जाके डिस्काउंट रेट होगा। दिस इज लाइक फीलिंग, ओके आई एम ब्लॉकिंग मनी फॉर 2 years, आई रिक्वायर इतना, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, 4.5%, दिस रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक सेकंड, तुम्हारा बुक पास करना। सो दो तरह का बुक्स मिला हुआ है, बिकॉज वी हैड मेड सम मिस्टेक इन द बुक्स विच रेक्टिफाइड। आप लोग जिन लोग का पेज ये मैच कर रहा था ना, अभी जो चालू किया, पेज नंबर 24 ऑफ 375, ये जो मैच कर रहा था वो वाले बुक में, इफ यू कम बैक टू पेज 19, जिन लोग का पेज 24 ऑफ 375 मैच कर रहा था, वहां पे कौन सा क्वेश्चन है? क्लास वर्क। पेज 19 देखा, वहां पे क्लास वर्क है ना। और मेरे पास जो बुक है उसमें क्लास वर्क क्वेश्चंस मिस हो गया था हम लोग से, तो एकदम बुक के पीछे में है वो। अगर बाई चांस किसी का पेज नंबर 29 मैच किया था, कोई है क्या ऐसा? वरना मैं फालतू ही बोल रहा हूँ। तुम्हारा पेज 29 मैच किया था, तो तुम्हारे में क्लास वर्क क्वेश्चन जो है ना वो पीछे है। आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू सो दैट यू डोंट गेट। हाँ, 375 में है जो भी है। ठीक है, तो क्लास वर्क क्वेश्चन मिस हो गया था। एक बार क्लास वर्क क्वेश्चंस के सेक्शन में आ रहे हैं, तो आई एम कमिंग टू पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 ऑफ 375 में आ जाओ, पर जिनके क्लास वर्क क्वेश्चन पीछे है वो लोग पीछे रेफर करो। पेज 20 ऑफ 375। ओके, उसमें जो LOS A का क्वेश्चन दिया हुआ है, Peter Parker has just inherited some money and wants to set some of it aside for a vacation. ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, ठीक है। नंबर टू में आते हैं। The real risk-free rate can be thought of as, the real risk-free rate can be thought of as ABC. Real risk-free rate can be thought of as A क्या है? Approximately the nominal risk-free rate reduced by what? Inflation. अगर नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन हटाएंगे तो रियल रेट आएगा एग्जैक्ट या अप्रॉक्स? अप्रॉक्स एकदम सही है। अप्रॉक्सीमेटली द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट रिड्यूस्ड बाय व्हाट? इन्फ्लेशन। जबकि ऑप्शन नंबर बी क्या है? एग्जैक्टली द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट रिड्यूस्ड बाय व्हाट? इन्फ्लेशन। दैट्स रॉन्ग। अगर आपको एग्जैक्ट लाना है तब तो यू हैव टू डू 1 प्लस नॉमिनल डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन -1। ठीक है, तो ए और बी में आंसर कौन सा है? ए। ठीक है, तो 2 का आंसर इज ए। 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी तक जो भी कर रहे थे उसमें 2 ही थोड़ा काम का था, बिकॉज इट्स हिंटिंग दैट यू नो दैट एग्जैक्ट और अप्रॉक्स का डिफरेंस। ठीक है, नंबर 3 तो वही है, रिपीटेड जो पीछे था। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। वापस से कॉपी में आ जाओ, और कॉपी में फिर से एग्जाम्पल में consider a project which is risky, full stop. It involves the production of
It involves the production of a commodity. It involves the production of a commodity full stop. The current price of the commodity is 40. Current price of the commodity is 40. Current price of the commodity is 40. Full stop. We expect 5% inflation. We expect 5% inflation. Full stop. We expect to produce and sell. We expect to produce and sell 1,000 units. 1,000 units at the end of year 1. 1,000 units at the end of year 1. Full stop. Para change. Risk adjusted real rate of return. Risk adjusted real rate of return. Risk adjusted real rate of return equal to 11%. Next line. Calculate the amount that we are ready to invest today. Calculate the amount that we are ready to invest today. That we are ready to invest today. Solution. लिख दो PV, present value, is equal to FV divided by 1 plus R. PV is equal to FV divided by 1 plus R, because यहाँ पे एक ही साल है तो 1 plus R power 1, so I did not write that. Next line. The rule is that nominal cash flows must be discounted. Nominal cash flows must be discounted at the nominal rate. While real cash flows must be discounted. Real cash flows must be discounted at the real rate. Real cash flows must be discounted at the real rate. Full stop. Next line, method 1. Nominal CF and nominal R. मैंने लिखा है nominal CF and nominal R. So nominal CF1 एक साल बाद जो आने वाला है equal to 1000 into 40 into 1.05. एक साल बाद तो दाम बढ़ जाएगा. We'll be able to sell it at 42. तो equal to what? 42,000. We are calling it nominal because does 42,000 include inflation? Yes. ठीक है. Nominal R equal to 1.11 into 1.05, whole thing minus 1. 1.11 into 1.05, whole thing minus 1 equal to 16.55%. If somebody later tells me that sir यहाँ पे आपने 11 plus 5 क्यों नहीं किया, ये वाला पार्ट जो मैं करवा रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर LOS में ऑथर ने समझाया नहीं है, कहीं और काम आएगा, तो अपने आगे का पोर्शन कर रहे हैं, पर मेरे को तो दिखाना है दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा सेम. तो वैसे केस में तो मेरे को एक्यूरेसी पे जाना पड़ेगा ना. आई हैव टू टेक एग्जैक्ट फिगर्स.
ठीक है? तो डू नॉट कंफ्यूज इट दैट्स व्हाई डिड यू डू n+5 बिकॉज आई वांटेड टू टीच समथिंग दैट देखो नॉमिनल से और रियल से आंसर क्या आता है सेम, बट दैट सेम हैज टू बी प्रूवन बाय डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना. तो 16.55%. therefore PV equal to 42,000 divided by 1.1655. 42,000 divided by 1.1655 equal to what? 36,036. ठीक है ना, डेसिमल में नहीं जा रहे. 36,036. तो आज अगर 36,036 लगाते हैं तो तुमको 16.55% एक्स्ट्रा मिलेगा. मतलब क्या मिलेगा? 42. यू आर सेटिस्फाइड? आपको इन्फ्लेशन भी मिल गया जो चाहिए था. नेक्स्ट मेथड 2, रियल कैश फ्लो एंड रियल आर. डिस्काउंट रेट भी रियल, कैश फ्लो भी रियल. रियल मतलब इन टर्म्स ऑफ टुडेज परचेसिंग पावर, दैट इज इग्नोरिंग इन्फ्लेशन. So real cash flow equal to 1000 into 40 equal to what? 40,000. एक मिस्टेक होता है लोगों से, इसलिए क्लियर कर लूं. ये 40,000 कहां पे खड़ा है? एक साल बाद. पर ये किसका परचेजिंग पावर रिफ्लेक्ट कर रहा है? आज का. ये खड़ा आज नहीं है. 40,000 एक साल बाद ही आएगा, बट इट रिफ्लेक्ट्स द परचेजिंग पावर ऑफ व्हाट? टुडे. It's not that it is CF0, it is also CF1. In fact, let's write that जिससे कि वो confusion आए और मन में clear हो. It is not coming today, it's coming after 1 year, but it's reflecting today's purchasing power. ठीक है? तो 40,000 के आगे लिख दे dash. In terms of today's purchasing power. In terms of today's purchasing power. पर today's purchasing power को today नहीं मान ले कि सही ये तो आज ही पैसा मिल गया, एकदम ही नहीं. तब इसका PV क्यों कर रहे हैं? In terms of today's purchasing power. नेक्स्ट रियल आर, वो तो दिया वही था. व्हाट? 11. हम लोग बोल रहे थे अगर हम लोग इन्फ्लेशन नहीं सफर करने वाले हैं तो अपने को 11 चाहिए. देयरफॉर पीवी इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 1.11. 40,000 डिवाइड बाय 1.11 क्या? 36,036. ठीक है? तो दोनों मेथड से आंसर एग्जैक्टली दिखाने के लिए मैंने फर्स्ट मेथड में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज किया, वरना ऑथर इस चैप्टर में एडिटिव मॉडल ही यूज कर रहे हैं. ठीक है ना? ओके. तो ये वाला जो एग्जांपल था, दिस सरपासेस दिस चैप्टर का रिक्वायरमेंट. ओके, ठीक. अब लिख दो कैलकुलेटर स्टफ. हेडिंग लिख दो ऐसे ही, कैलकुलेटर स्टफ. या पॉइंट नंबर 6 पे चले जाए. काम करो पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेटर स्टफ. कैलकुलेटर स्टफ. तो जरा सा कैलकुलेटर स्टफ लास्ट क्लास बताया था, पर डिक्टेट नहीं कर पाया था. ठीक है? तो और कैलकुलेटर स्टफ जो है वो सारा बता दे रहे हैं. तो कैलकुलेटर में वी हैव अप टिल नाउ अंडरस्टूड हाउ टू चेंज द डेसिमल प्लेस. इज इट? डेसिमल प्लेस सबको आ गया? कैसे? सेकेंड डेसिमल या फॉर्मेट जो ही बोल लो, सेकेंड डेसिमल और उसके बाद जाके जो डेसिमल चाहिए एंटर. करेक्ट ना? ये तो सबके लिए ओके है. जस्ट 1 सेकेंड. कैलकुलेटर स्टफ, इसमें पॉइंट नंबर ए लिखना, डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेसेस में सेकेंड फॉर्मेट, उसके बाद जो आपको चाहिए, ये स्क्रीन दिखा रहा हूं, से 4 एंटर CEC. ठीक है? थोड़ा सा ये लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बट यू शुड कॉपी दिस बिकॉज बाद में फालतू फ्रिक्शन होता रहेगा. ठीक है ना? सेकेंड फॉर्मेट 4 एंटर CEC. सेकेंड तो अपने कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा 3 चल रहा है अभी मेरे में, तो मैं कर रहा हूँ सेकेंड, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद 4, उसके बाद एंटर और उसके बाद ये रहा CEC. एवरीबडी सेटिस्फाई देमसेल्व्स प्लीज. इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग यू कैन रेज योर हैंड. किसा एकदम ही नहीं हो रहा है.
ठीक है, ओके तो आई थिंक डेसिमल इज नॉट एन इश्यू, एवरीथिंग एवरीबडी इज ओके। सेकेंड फॉर्मेट ये डेसिमल वाला बटन है। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, स्टोरेज एंड रिकॉल। स्टोरेज एंड रिकॉल, storage and recall function, which means, सुनना प्लीज, what we need to do, अपने को करना है सपोज 40,000 डिवाइड बाय 1.15 प्लस आई वांट टू डू 70,000 डिवाइड बाय 1.17। सपोज ये करना है, डिस्कस हो रहा है अभी, ये करना है, पर मेरे को बीच में एग्जामिनेशन पेपर को स्पॉइल नहीं करना है, बिकॉज वर्किंग शीट मिलेगा नहीं, एग्जाम पेपर के बगल में ऐसे लिखना एंड ऑल दैट इज अ टाइम वेस्टेज। और भी इससे ज़्यादा कैलकुलेशन होगा जिसमें कुछ कैलकुलेट करना है, फिर उसके हेल्प से कुछ होता है ना, सीक्वेंशियल, यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग, देन उसके हेल्प से कुछ और, देन उसके हेल्प से कुछ और, वैसा। तो अपने जो मेमोरी फंक्शन यूज़ करते हैं ना नॉर्मल कैल्सी में, मेमोरी एंड देन मेमोरी रिकॉल, तो मेमोरी वाला काम यहाँ पे कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो उसके लिए कैल्सी में जाएं प्लीज़, ठीक है, और कैल्सी में अपने 40,000 था ना मेरा, सपोज 40,000 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू कुछ आया, क्या आया 34,782। इसको STO1, STO दिख रहा है यहाँ पे, CC के ऊपर RCL है, फिर STO है, मैंने किया है STO1, करेक्ट। तो यार स्टोरेज 1 में चला गया, ऐसे 9 स्टोरेज है कैल्सी में, स्टोरेज 1, स्टोरेज 2, स्टोरेज 3, स्टोरेज 4, स्टोरेज 9, 9 मेमोरी का बटन है, तो स्टोरेज 1 ये चला गया उसके अंदर। सेकेंड वाला था सपोज 70,000 को 17 से टान रहे हैं, चलो लेट्स डू इट अगेन। 70,000 डिवाइड बाय 1.17 इक्वल टू STO2, STO2 स्टोरेज 2 में चला गया। अब करना है RCL1 प्लस RCL2, क्या करना है RCL1 प्लस RCL2, लॉजिक समझ गया होगा, रिकॉल करके ऐड हो रहे हैं, तो RCL1 प्लस RCL2 इक्वल टू व्हाट्स द आंसर 94,611.66। ओके, यू मे ऑल एट वंस नॉट एंटरटेन कि क्या ग्रेट हो गया, बट एज वी मूव इनटू कैलकुलेशंस वगैरह, ये स्टोरेज और रिकॉल इतना ज़्यादा फायदे का चीज़ होता है ना, बड़ा बड़ा सम जिसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, विदाउट टचिंग द पेन, विदाउट टचिंग द पेंसिल यू कैन डू इट बाय जस्ट फीडिंग देम। एंड स्टोरेज को हटाना नहीं पड़ता है, जब उस पर नया स्टोरेज डालेंगे तो पुराने के बदले नया चला जाएगा, समझ गए, इट्स सब्सटीट्यूटिव, इट्स नॉट एडिटिव, क्यूमुलेट नहीं होता है, हटता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सपोज आपको कैलकुलेट करना है ये कैलकुलेशन, अगर ध्यान देना, सपोज यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन 400 डिवाइड बाय 0.07 ब्रैकेट 1 माइनस 1.02 डिवाइड बाय 1.11 टू द पावर 6, ये कैलकुलेशन सपोज करना है, मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो वेरी स्लो इनटू इट। तो इन दैट केस अगर ये कैलकुलेशन करना है तो इसमें सबसे दिक्कत वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट है, एक बार डिस्कस करें बिफोर गोइंग टू द कैल्सी। तो इसमें अपने करेंगे 1.02 बाई 1.11 इक्वल टू कुछ आएगा, उसके बाद पावर 6 करना है, क्या करना है पावर 6। कैल्सी में चेक करो y पावर x का बटन दिखा, y पावर x का बटन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है बताना, 9 के ऊपर, 9 के ऊपर ना, ठीक है, y पावर 6 का बटन दिख रहा है। लेट्स डू दैट, चलो 1.02 बाई 1.11 साथ में करते जैसे कॉन्फिडेंस आए। 1.02 डिवाइड बाय 1.11 इक्वल टू किया। अब इसको मेरे को रेस करना है टू द पावर 6, तो y पावर 6, मैं y पावर x में जा रहा हूं, y पावर x को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद 6, y पावर x को प्रेस किया, उसके बाद पावर 6 इक्वल टू, ठीक है, ये आया 0.6021 आया आप लोग आ गया। एक सेकेंड वापस से कर लूं, कुछ लोग जो नहीं कर पाए वापस कर दे साथ में। 1.02 डिवाइड बाय क्या 1.11 इक्वल टू, ये आया। इसके बाद y पावर x को प्रेस करना है और उसके बाद 6 को प्रेस करना है और इक्वल टू, ये आ रहा है, ये जो आया। चलो STO1 बिकॉज कौन झमेला लेगा इसका, STO1 में डाल दिए,
क्या कैलकुलेशन था, ये जो पार्ट आया इसमें से 1 माइनस ये करना था, क्या करना था 1 माइनस ये, तो इन दैट केस ये जो मेरा था RCL1 में RCL1 माइनस 1 इक्वल टू, पर मेरे को तो 1 माइनस दैट करना था, तो क्या कर दो प्लस माइनस, आई हैड टू डू A माइनस बी, आई हैव डन व्हाट B माइनस A, तो आंसर का साइन चेंज करना है, प्लस माइनस का बटन डेसिमल के बगल में नीचे में दिख रहा है, हाँ तो हटा दिया साइन प्लस माइनस, ठीक है ये आया। अब ये जो आया अब तो डायरेक्ट हो जा रहा है, बिकॉज इसको इंटू 400 डिवाइड बाय 0.06 था क्या, इंटू 400 बाय 0.07, लेट्स डू दैट, इंटू 400 इक्वल टू डिवाइड बाय 0.07, क्या आया 2273.7576 ना, 2273.7576 ये आया है, ठीक है। अगर लगता है आपको गलती आ गया तो पूरा थोड़ी करना है, वापस से RCL1 डाला हुआ था, RCL1 में याद है वो वाला पार्ट, उसमें से -1 इक्वल टू, पर सा 1 माइनस करना था तो प्लस माइनस साइन चेंज, उसके बाद इनटू व्हाट 400 और डिवाइड बाय व्हाट 0.07 इक्वल टू 2273.7576। इज इट ओके? ओके, तो ये करना है अपने को। एक बार ये समझ में आया कि सर स्टोरेज फंक्शन का मतलब है जो भी चीज बीच में कैलकुलेट हो रहा बाद में दरकार पड़ेगा उसको स्टोरेज में डाल दो। इट कुड बी पार्ट ऑफ अ बिग कैलकुलेशन, हो सकता है तुमको 4 चीज डालना पड़ेगा, नो इश्यू। फिर क्या करना है, जो फर्स्ट वाला डाला उसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करना है, यू डोंट हैव टू राइट, सारा स्टोरेज में है ना, समझ गया, वो डायरेक्टली हो जाता है। बट उसका मेन रिदम कब आता है ना, व्हेन वी डू सम्स। अभी तो क्या मैं सम्स के बिना बता रहा हूं, माय पर्पस इज कैलसी। जब अपने अप्लाई करते रहते हैं तो रिदम आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? ठीक है, आपको जो सेटिस्फैक्शन है ना 10/10 वो तब आएगा जब अपने सम्स के अंदर ये करते रहेंगे। एक बार आप ये सोचो सर जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या, हाँ स्टोरेज में डालना है और रिकॉल से निकालना है। इज इट ओके? सो दैट मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, करेक्ट? लेट्स गो इनटू इट। तो कॉपी में कर रहे थे अपने नोट्स, पॉइंट नंबर 2 स्टोरेज एंड रिकॉल। तो स्टोरेज एंड रिकॉल में ये लिख लो 40,000 बाय 1.15, 40,000 by 1.15 plus 70,000 by 1.17, 40,000 by 1.15 plus 70,000 by 1.17, ठीक है। और इसके नीचे फर्स्ट वाला जो है उसके नीचे, एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट वाले के नीचे लिख दो STO1 और सेकेंड वाले के नीचे STO2 और उसके बाद लिख दो RCL1 प्लस RCL2, लिख दो RCL1 प्लस RCL2। तो ये जो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ रहेगा उससे अगर तुमको घर पे अगर देखने का मन किया, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड इन क्लास। इज इट ओके? मैं STO RCL का बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवा दूंगा पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद, पर एक बार बीच में कैल्सी बताना जरूरी था। नेक्स्ट, एक मिनट और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज फाइंड आउट करना है 70,000 बाय 1.07 पावर 10 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 1.08 पावर 20। ये फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए एक सेकेंड, आई थिंक यहां से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। नीचे मतलब क्या, 1.07 पावर वॉट 10, वो करोगे पहले स्ट्रैटेजी सोच लो। 1.07 y पावर x 10 करोगे, वो जो आएगा उसका 1/x, उसका 1/x का बटन है वहां पे रेसिप्रोकल, और फिर इनटू व्हाट 70,000, वो जो आया STO1। उसके बाद 1.08 y पावर x 20, वो जो आया 1/x इनटू व्हाट 90,000 STO2। फिर RCL1 प्लस RCL2 स्टार्ट करें, चलो कॉन्फिडेंटली करते हैं। आंसर आने के बाद तुम्हारा अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। 1.07 पावर 10 करना है, आई एम डूइंग इट CC। 1.07 y पावर x 10 इक्वल टू, ये आया, इसको 1/x कर रहा हूं, 1/x का बटन y पावर x के ऊपर था और इनटू क्या कर रहा हूं, व्हाट वाज द अमाउंट 70,000 इनटू 70,000 कर दिया मैंने, इक्वल टू, ये मेरा 35,584 करीब आया है, आया आप लोग का। इसको STO1 में डाल रहा हूं, STO1
ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था? 1.08 y पावर x 20 करें। 1.08 y पावर x 20 इक्वल टू, ये जो आया इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो 1/x, और इसको क्या अमाउंट था? इंटू 90,000 इक्वल टू, ये आ गया। इसको एक्चुअली स्टोरेज में डालने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो है ही स्क्रीन पे। दिस प्लस RCL1, दिस प्लस RCL1 इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या आया? 54,893 आया। 54,893 ओके, 54,893। y पावर x का भी फंक्शन पता चल गया आपको कि y पावर x कैसे यूज करते हैं। सही है, लिख दे रहा हूं इक्वल टू 54,893। तो ये अपने आप एक बार ट्राई करने के लिए रहेगा, ये घर पे ट्राई करें 54,893 आ रहा है क्या। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 सी, क्या पॉइंट नंबर सी, सॉरी, पॉइंट नंबर सी, TVM मोड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोड। तो TVM मोड में कैल्सी में जो स्ट्रोक्स है, एक N का बटन है, बना रहे हैं, एक I/Y का है, एक PV का है, बनाओ प्लीज, एक PMT का है और एक FV का है। ये सब दिख गया? तो इन दैट केस PV समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट वैल्यू है। FV समझ में आ रहा होगा, क्या है? फ्यूचर वैल्यू, जो ऑब्वियस चीज है। I मतलब इंटरेस्ट रेट, जो आपको इंटरेस्ट रेट यूज करना है उसको परसेंटेज में पुट करना है, डेसिमल में नहीं। 8% को 8 पुट करना है, 0.08 पुट नहीं करना है। ठीक है, और N जो है वो भी ऑब्वियस है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड जो भी रहेगा। ठीक है, जो PMT है वो अभी तक किए नहीं है, दैट्स एन्यूटी। व्हाट इज इट? एन्यूटी। तो मेरे को लगा दो चीज का मतलब बाई चांस अटको तो, एक तो I/Y का मतलब इंटरेस्ट रेट और PMT का मतलब क्या? एन्यूटी। बाकी PV FV तो वर्ड से पता चल रहा था, तो वो लिखा के कोई सेंस नहीं होगा। करेक्ट। हमेशा जो पैसा जा रहा है और जो आ रहा है उसका ऑपोजिट साइन होगा। क्या होगा? ऑपोजिट साइन। ठीक है, देयर विल बी ऑपोजिट साइन ऑफ दीज टू फिगर्स, एज इन इसका और इसका, तो कम से कम क्या होगा? ऑपोजिट साइन। लिख देना ऑपोजिट साइन। छोटा छोटा चीज है, नथिंग बिग, बट इफ यू जस्ट प्रिपेयर दैट 1.5 पेज का नोट्स, इट्स ऑलवेज गुड। ऑपोजिट साइन। ठीक है, एक बार बताना प्लीज, तुम लोग को साइन पूछ रहा हूं क्या होगा PMT का। क्वेश्चन क्या है सुन लो। हम लोग आज 50,000 बैंक में जमा कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग हर साल 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 और जमा करेंगे 10 साल तक। 50,000 जमा कर रहे हैं और 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 और जमा करेंगे 10 साल तक। मेरे को पता लगाना है वो क्या बन जाएगा लास्ट में। पता लगाना है क्या बन जाएगा लास्ट में। इंटरेस्ट रेट सपोज 9% है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैं एन्युटी कराया नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू PMT, बट फ्रॉम योर लॉजिक वाइज इस सब में आपका जो क्या बोलते हैं हम, या एक मिनट उल्टा बोलते हैं, 50,000 जमा करें, फिर 4,000 4,000 4,000 4,000 10 बार, अगर तुम ध्यान दो तो 90,000 जमा कर दिया। 50,000 शुरू में, फिर 4 4 4 4 10 बार, कितना? 40, तो 90 जमा कर दिया। तो पक्का अमाउंट बन गया होगा 90 या 90 से ज्यादा। सपोज बन गया 130। क्या बन गया? 130, 1,30,000। तुमसे पूछ रहा है इसके अंदर छुपा हुआ इंटरेस्ट क्या है। ये जो पूरा स्टोरी है ना, 50,000 और 4 4 4 4 4, अगर 31 बन गया तो पक्का ब्याज मिला है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? तो वी हैव टू फाइंड आउट I/Y, वी हैव टू फाइंड आउट I/Y एंड वी हैव टू फीड द अदर थिंग्स। तो इन दैट केस वी विल फीड 50,000 एज व्हाट? PV। 50,000 एज PV। सब प्लस या माइनस वो तेरा मन, 50,000 को कुछ भी डाल दे। वैसे फीलिंग वाइज माइनस डालना चाहिए क्योंकि हम लोग जमा कर रहे हैं ना। तो इफ यू गो लॉजिकली इट्स ऑलवेज बेटर। 50,000 जमा करे तो वो जा रहा है घर से, तो 50,000 प्लस माइनस, 50,000 प्लस माइनस, मैंने प्लस माइनस वाला बटन टीपेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। 50,000 प्लस माइनस तो नेगेटिव हो गया, वो क्या होगा? PV। उसके बाद जो 4-4 हजार है वो क्या हो रहा था? एन्युटी। ठीक है, PMT, पर वो आ रहा था कि जा रहा था? वो भी वही, उसका वही साइन होगा जो PV का साइन है।
पीवी का स्टेटस और पीएमटी का स्टेटस इस एग्जाम्पल में सेम है, दोनों जा रहे हैं। तो आप पीवी को अगर 50,000 को प्लस डालें, नो इश्यूज, तो आप 4,000 को क्या डालोगे, प्लस। पर अगर पीवी को 50,000 को माइनस में डाले तो 4,000 क्या डालोगे, माइनस। वो लॉजिक होना चाहिए। और वो जो 1,30,000 है, 1,30,000 वो क्या है, एफवी, पर उसका ऑपोजिट साइन, उसका जो तुम्हारा मन। तुमने अगर 50,000 और 4,000 को प्लस डाला था तो 1,30,000 को क्या, माइनस। अगर सब चीज को प्लस डाल दिया, फिर कैल्सी पूछेगा सीपीटी आई बाय वाई, तो बोलेगा एरर, कैल्सी एरर दिखाएगा। बिकॉज वो बोलेगा क्या बोल रहा है यार, 50,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है, फिर 1,30,000 आ रहा है, फिर ब्याज बता। दैट्स नॉट पॉसिबल ना, कुछ जाएगा तो आएगा। तो इसलिए वो फिर एरर दिखाएगा, तो यू हैव टू मैनेज दैट अप्रोप्रिएटली। तो अपने खैर उस केस में एन डालते 10, एन क्या डालते 10, और फिर अपने निकालते क्या, सीपीटी आई बाय वाई। निकाले एक बार, चलो। 50,000 प्लस माइनस पीवी, आपने 50,000 प्लस माइनस पीवी डाले हैं। अब 4,000 पीएमटी, और मैं प्लस माइनस भूल गया, आई मेड ए मिस्टेक। तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब रेक्टिफाई कर दो। वापस से कर रहा हूं, 4,000 प्लस माइनस पीएमटी, सब्सटीट्यूटिव है कैल्सी, वापस शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तुमने गलती डाल दिया तो ठीक है, सही वाला डाल देना, अब क्या प्रॉब्लम है, समझ, अब पुराना वाला हट गया। तो क्या था, 50,000 अपना पीवी था, नेगेटिव डाला था, और 4,000 नेगेटिव डाला क्या, पीएमटी। 1,30,000 ये मैंने ज्यादा प्रेस कर दिया। तो इन दैट केस ये एरो का बटन है ना, ये एरो का ऊपर ऑन ऑफ के नीचे, एरो का बटन से 1 डेसिबल कम हो गया। आई एम डूइंग इट डेलिबरेटली ना, जिसे पता चले तुमको, तुम्हारे साथ भी तो ये सब हो रहा है। 1,30,000 इज व्हाट, एफवी। एफवी कितने बार डाल रहे थे, 10 बार। 10N सब डाल चुके। अब सीपीटी आई बाय वाई, सीपीटी आई बाय वाई 4.825 आया है, 4.825% आया है, 4.825% आया है। ठीक है, तो जिनका भी नहीं आया, या तो आप फोकस करे हो सुनने में कि बाद में करेंगे, तो चलो करो ना बाद में यार फिर एक बार। बिकॉज आपका 4.825 नहीं आएगा, फालतू बैठे बैठे यहाँ पे क्लास पे दुख से निकलोगे कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था। वाई डू ऑल दैट, प्लीज डू इट वंस अगेन। चलो वापस से करते हैं। 50,000 प्लस माइनस पीवी, उसके बाद क्या था, 4,000 प्लस माइनस पीएमटी, उसके बाद 1,30,000 एफवी, उसके बाद 10N, उसके बाद सीपीटी आई बाय वाई 4.825 आना चाहिए आपके। ठीक है, ओके, 4.825। हो सकता है किसी के कैल्सी में गलत सेटिंग्स किया हो, तो बिकॉज ऑफ विच प्लीज बताना किसका नहीं आया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एम्बैरेसमेंट, बिकॉज यू मे नॉट बी डूइंग अ मिस्टेक, द कैल्सी माइट बी मैल फंक्शनिंग। तो आई नीड टू नो दैट ना, जिसने ट्राई किया और जिसका नहीं आया, तो प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो अज्यूम कर रहा हूं 2 ही तरह के लोग बैठे हैं, या तो जिनका आ गया, या जो लोग कैल्सी में कर रहे नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन। करेक्ट, ठीक है, ओके। तो in that case, prima facie TVM is okay with you. Not it's over, but prima facie you have understood किस बटन का क्या मतलब है, कैसे डालते हैं। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, इस पे आए एक बार, वापस से इस कैलकुलेशन में आए। ये कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले किए थे, आंसर 54893 आया था। ये कैलकुलेशन अगर कैल्सीज में टीवीएम मोड से करें, किससे, टीवीएम मोड से करेंगे, तो इसका आंसर फिर से निकालना है। एक बार कैल्सी स्टार्ट मत करो, डिस्कस करें। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, पूछ रहा ये हूं कि ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये वाले फिगर में 70,000 कैल्सी में क्या डालोगे, एफवी। बिकॉज 70,000 को 10 साल पीछे टानना है, तो 70,000 वहां खड़ा है। 70,000 इज व्हाट, एफवी। 10N 7 आई बाय वाई, सीपीटी पीवी। आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आते ही आंसर को प्लस माइनस टीपेंगे। क्या टीपेंगे, प्लस माइनस, तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। STO1 क्या, STO1। उसके बाद 90,000 FV,
20 n 8 I by y CPT PV नेगेटिव आएगा प्लस माइनस। अब इसमें पुराना वाला आंसर ऐड करना है, STO2 फायदा नहीं है, यही वाला आंसर में प्लस वॉट RCl1 करे रिदम से आया तो बहुत कॉन्फिडेंट आएगा। आंसर 54893 आना चाहिए। पहले 70,000 को 10 साल पहले 7% से। लेट्स स्टार्ट। एक मिनट रुको, एक चीज सबका रॉन्ग आने वाला है। वो क्या है कि जो PMT है ना पिछले सम में, अभी इसके पहले जो सम किए थे उसमें याद है PMT को 4000 डाले थे, तो कैल्सी के अंदर वो PMT 4000 डला हुआ है। तो अब क्या होगा अगर तुम उसको नहीं किया तो वो कैल्सी इस बार PV जो देगा ना वो 4,000 का भी दे देगा। यू अंडरस्टूड व्हाट? अगर अपने सेम बटन्स यूज किए थे और अब वही वाला सेम बटन्स यूज करेंगे तब तो कैल्सी सब्सटीट्यूट करेगा, बहुत बढ़िया। पर अगर कोई एक्स्ट्रा बटन यूज किए थे पिछले सम में तो कैल्सी में तो एक्स्ट्रा बटन रह गया ना, तो वो उसका भी PV कर देगा। द लॉजिक इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देन इट्स रिटेंटिव। ठीक है, तो इन दैट केस अपने को क्लियर करना जरूरी है। तो आप देखो एक बार FV के ऊपर क्या लिखा हुआ है, FV के ऊपर क्या लिखा हुआ है, CLR TVM दिखा, हाँ तो वो करना पड़ेगा। तो सेकेंड CLR TVM, मैंने सेकेंड FV किया है। अगर लगे कि वो इस कैल्सी प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई प्रेस करने के बाद भी समझ में नहीं आता वो कुछ ले लिया क्या, मैंने बहुत बार, बिकॉज डजेंट शो ना, तो वो डाउट हो जाता है, तो 2 बार और प्रेस कर दिया अगर नो इश्यूज। ठीक है, तो सेकेंड मेरे को डाउट हो रहा है अपने पे, तो सेकेंड क्लियर TVM वापस से कर दिए, सेकेंड क्लियर TVM। ठीक है ना, ओके चलो CEC चालू करें। क्या अमाउंट था, 70,000, कितने साल पहले, कितने साल पहले, 10 साल पहले, हाँ स्टार्ट। 70,000 FV 10 N, इंटरेस्ट रेट क्या था 7 I by y सब डाल दिए, CPT PV, तो PV नेगेटिव में आ रहा है, पर नेगेटिव का बात ही नहीं है तो प्लस माइनस। अब क्या STO1 इज इट ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन, क्या इस बार क्लियर TVM करना पड़ेगा? अब क्या TVM करना पड़ेगा क्लियर? नहीं, बिकॉज अभी तो तुम वही फंक्शन यूज करने वाले हो, FV N I by y, तो कैल्सी तीनों को सब्सटीट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ओके 90,000 था क्या, 90,000 FV कितने साल पहले, 20 था ना, 20 साल और 8%, हाँ तो 20 N 8 I by y CPT PV नेगेटिव में आया प्लस माइनस 19309 प्लस RCl1 इक्वल टू 54893। ठीक है, 54893। ठीक है, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फीलिंग दैट यस सर मोर और लेस समझ में आ गया क्या बोल रहे थे। इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस कि TVM में क्या कैसे फीड करना है, क्लियर TVM कैसे करना है वो समझ में आ गया। करेक्ट, चलो बैक टू द नोट्स, और नोट्स पे लिख लो टू क्लियर, वहीं पे जहां पे नोट्स बना रहे थे, टू क्लियर प्रीवियस वैल्यूज, टू क्लियर प्रीवियस वैल्यूज डैश सेकेंड CLR TVM। वैसे तो सेकेंड FV का बटन है, CLR TVM तो वही बटन है जो FV का है। तो सेकेंड क्लियर TVM, सेकेंड क्लियर TVM, सेकेंड क्लियर TVM। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, देर इज एग्जाम्पल, देर इज एन इन्वेस्टमेंट, देर इज एन इन्वेस्टमेंट which will pay the following amounts, and are to be discounted at different rates because of different levels of risk, are to be discounted at different rates because of different levels of risk. Okay, years, first column years,
सेकेंड कॉलम कैश फ्लो, थर्ड कॉलम फ्रॉम होम, लास्ट कॉलम डिस्काउंट रेट। मैंने 4 कॉलम बनाए, ईयर्स, कैश फ्लो, उसके बाद फ्रॉम होम, बताओ वो कहां से आ रहा है, और लास्ट कॉलम डिस्काउंट रेट। ईयर्स 4, 7.5, 30, 30 साल बाद, 4 साल बाद, 7.5 साल बाद, 30 साल बाद। कैश फ्लो 50,000, 2 लाख, 10 लाख, इतना पैसा आने वाला है। ये जो 50,000 आ रहा है, ये आ रहा है डबल बी रेटेड कंपनी से। किससे? डबल बी रेटेड। क्रेडिट रेटिंग का डिस्कशन हुआ था, AAA, AA, A, BBB, BB, ठीक है, ए रेटेड कंपनी से। ये वाला सिंगल बी रेटेड। सबसे हाईएस्ट रेटिंग किसका है? ए। इनमें, इन तीनों में से तो सबसे मोस्ट रिस्की है वो या सबसे लीस्ट रिस्की है? लीस्ट रिस्की है। पैसा इससे आने वाला है 7.5 ईयर्स बाद, तो कमती रिस्की है, डूबने का डर कम है। तो इन दैट केस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। सपोज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बीच वाले में 11% है। अब जो डबल बी है उससे आपको रिटर्न 11 चाहिए कि 11 से ज़्यादा या 11 से कम? ज़्यादा, कि बिकॉज उसमें रेटिंग कम है ना, तो उसमें ज़्यादा चांस है डिफॉल्ट होने का। AAA, AA, फिर BBB, BB आता है नीचे, तो देयर इज अ हायर चांस ऑफ डिफॉल्ट। तो मैं क्यों रिस्क लूंगा? तो मेरे को उस पर 12.5% चाहिए, और बी तो डबल बी के भी नीचे है, तो उस पर सपोज अपने को 13.7% चाहिए। मन से लिखा है, ठीक है ना। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। मैंने क्वेश्चन ये हो गया कि आप ये पैसा पाने के लिए आज कितना पैसा लगाने को तैयार हो। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्लीज करें खुद से। फर्स्ट वाला फीलिंग दे दे रहा हूं, 50,000 को 4 साल पहले टालना है 12.5 के रेट से, तो 50,000 FV होगा, 4N होगा, 12.5 I/Y होगा, और CPT PV करके प्लस माइनस STO1, ठीक है। इस रिदम में करना है, प्लीज डू इट। क्या आंसर आया? 1 मिनट, क्या आंसर बोल रहे हो? बोलो, ठीक से बोल दो। 1,438,9,0। ठीक से बोलने का मतलब बोलना था, वैसे बोल दो 1,43,890। ओके, तो 1,43,890 आ रहा है क्या? बहुत जन का आ रहा है, इसलिए राइट ही आ रहा होगा। जिनका नहीं आ रहा है वो लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे, उसके लिए भी इजी है। जिनका नहीं आ रहा है सब जन शेयर करें। RCL1 क्या है? RCL1 क्या है आपके डाला हुआ, बताओ। 1 मिनट, RCL1 लोग बोल रहे हैं क्या? बोलो। 31214, चेक कर लो, ठीक है, अप्रॉक्स 31214 RCL1 है। तो स्टेज वाइज चेक हो सकता है आपने कहीं गलती किया है तो, ठीक है। और RCL2 क्या है? 91,433, ठीक है। और वैसे तो लॉजिकली RCL3 में कुछ डालना नहीं था,
क्योंकि तीसरा वाला तो आया होगा, तुम लोग सीधा प्लस RCl1 प्लस RCl2 कर दिया होगा, और कोई लोग रिदम के लिए STO3 में डाला होगा, तो दे मस्ट हैव डन RCl1 प्लस RCl2 प्लस RCl3। जो लोग RCl3 में डाला, कितना डाला? 2 1 2 1 2 1 2 4 1, ये क्या? हाँ, RCl3 था। तो वेयर हैव यू मेड अ मिस्टेक? इफ इन केस यू हैव मेड अ मिस्टेक यू कैन चेक इट आउट। ये तीनों फिगर्स RCl1 RCl2 RCl3 का है, ठीक है? आई होप रीजनेबल लेवल पे हो रहा है सबका, ठीक है? इन अ मास ऑडियंस वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी माइक्रो टीचिंग वाइज, ठीक है? दैट कैन ओनली बी डन आफ्टर द क्लास इन केस यू कम बाय ओवर हियर एंड वी कैन डू 1 to 1 की वेयर मिस्टेक इज हैपनिंग, ठीक है? तो एक्चुअली यू रिक्वायर जस्ट वन कॉन्फिडेंस, एक बार एक दो फिगर्स मिले तो अपने आप ही रिदम आ जाते हैं, ठीक है ना? तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये तो एग्जाम्पल दिया ना मैंने बीच में, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी क्या? पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी जो है, पॉइंट नंबर डी हो गया? नहीं, डी तो होगा। पॉइंट नंबर डी है बॉड मास। उस दिन कंफ्यूज हुआ था ना मैं उसमें, अगर चेक कर लेते, बॉड मास डैश AOS मोड। कौन सा मोड? AOS मोड। तो आप लोग का कैल्सी हो सकता है AOS मोड में ही होगा, एक बार चेक कर लो। कैसे चेक करते थे? सेकेंड फॉर्मेट, फिर सेकेंड एंटर, फिर एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन। तो मेरे में भी CHN है बिकॉज नया कैल्सी है ये। व्हाट हैव आई डन? सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड एंटर, और फिर एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन किया है मैंने। फिर से चेक करो, मैं सेकेंड फॉर्मेट, फिर सेकेंड एंटर, फिर एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन करते करते मेरे CHN आ रहा है, जो कि गलती है। CHN आने से गड़बड़ हो जाएगा, तो CHN के बदले क्या आना चाहिए? AOS, ठीक है? तो AOS कैसे लाते हैं? सेकेंड एंटर, तो AOS आ गया। लिखवा रहा हूं, सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड एंटर, सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड एंटर, उसके बाद एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन। पांचवी बार आता है क्या? चेक कर ले। 4 बार क्या? 1 मिनट। सेकेंड फॉर्मेट, ओ एरो अप करने से बोल रहा है एक ही बार में आ जाएगा। लेट्स चेक। सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड एंटर, एरो अप। हाँ, एरो अप, बिकॉज वो लास्ट वाले लगता है उस पूरे रिदम में, वो लास्ट वाला है, तो एरो अप करे, इधर से पकड़ ले रहे ना उसको, ठीक है ना? तो इन दैट केस वो बेटर रहेगा ना, ठीक है? वो बेटर रहेगा क्या? एरो अप। तो एरो अप करने से मेरे में CHN आ रहा है, उसको चेंज करना है, तो क्या करें? सेकेंड एंटर, तो क्या आ गया? AOS। सेकेंड एंटर, तो क्या आ गया? AOS। जिन लोग का ऑलरेडी AOS आया होगा उन लोग का चेंज होकर CHN हो गया होगा। सही तो बोल रहा हूं? तो आप ये इंश्योर कर लो कि आपके AOS आ जाए, उसके बाद उसको टच ही नहीं करें कभी। तो एक्चुअली ये वाला बटन जो है, ये वाला फॉर्मेट कभी आपको एग्जाम में यूज ही नहीं करना है। आप AOS लाके छोड़ दो, AOS लाके छोड़ दो। इससे फायदा क्या होगा? आपको ब्रैकेट का यूज नहीं करना पड़ेगा। किसका? ब्रैकेट का। इफ यू आर डूइंग सम कैलकुलेशन 2 into 5 + 7 - 3 + 8 into 9, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट डूइंग ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है? तो नथिंग एल्स। तो AOS मोड में होना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। AOS मोड, ओके, एल्जेब्रिक मोड में होना चाहिए कैल्सी। इट विल हेल्प एट नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है? कहाँ हेल्प करता है हम लोग को? एग्जाम्पल लिखना। कंसिडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, कंसिडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, कंसिडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। तीन कॉलम है। फर्स्ट कॉलम स्टॉक्स, मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या है? पोर्टफोलियो जो बंडल ऑफ सिक्योरिटीज ना, तो व्हाट आर द सिक्योरिटीज आई हैव इन माय पोर्टफोलियो? स्टॉक्स। उनका वेट्स, कितना कितना % पैसा किस में लगाया हुआ है, और उसके बाद उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न, हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ABC 3 स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, कितना? 0.5, 0.3, 0.2, 50, 30, 20। ओके विथ यू ऑल? आधा पैसा मैंने A में लगाया है, 30% B में। एक्सपेक्टेड रिटर्न A से 19% है, B से 25% है, और C से 10% है।
ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ओके, मीन रिटर्न। अपने को पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, लिख दो नीचे, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो उस केस में विदाउट एनी टीचिंग सबको समझ में आ रहा होगा, वी विल अर्न 19% ऑन हाफ द मनी, we'll earn 25% on 30% money, we'll earn 10% on 20% money. Weighted average करना है, you have to do this into this plus this into this plus this into this, यही तो करना है, weight into return, weight into return, weight into return, और divide by summation weight क्या करेंगे, summation weight is always what, 1. weighted average का formula क्या होता है, summation wx by summation w, but summation w तो करना ही नहीं है, because what is summation w, 1. तो listen to the rhythm, it's 0.5 into 19 plus 0.3 into 25 plus 0.2 into 10. एक बार लिख लें सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं ERP, फुल फॉर्म, E माने एक्सपेक्टेड, R माने रिटर्न ऑफ व्हाट, पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, इज इक्वल टू वेटेड एवरेज equal to 0.5 into 19 plus 0.3 into क्या था, 25 plus 0.2 into क्या था, 10. 0.5 into 19 plus 0.3 into 25 plus 0.2 into 10 equal to, अब equal to कौन लिख लिख के करेगा, दिस इनटू दिस क्या आया, प्लस प्लस, वो गलत चीज है, तो वी शुड बी डूइंग स्ट्रेट अवे। तो कैलसी से करें, ओके, कैलसी से करें, तो कैलसी में मेरा पहले मोड कौन सा देख तो ले, सेकेंड फॉर्मेट, एरो अप, CHN मोड है मेरा, ठीक है ना, तो सेकेंड एंटर, AOS, दैट्स परफेक्ट, 0.5 इंटू 19 प्लस 0.3 इंटू क्या था, 25 प्लस 0.2 इंटू क्या था, 10 इक्वल टू 19. Okay, 19% is the answer. Okay, if you are matured, you are understanding. Otherwise क्या करते, ये इंटू ये को यहाँ लिखते, ये इंटू ये को यहाँ लिखते, ये इंटू ये को यहाँ लिखते, या फिर क्या करते, 0.5 इंटू 19 को इक्वल टू STO1, 0.3 इंटू 25 को क्या, STO2, बट एवरीथिंग इज ए टाइम वेस्टेज ना, द होल पॉइंट इज अबाउट बीइंग एज स्मूथ एज पॉसिबल, ठीक है। तो और या फिर क्या करते, ब्रैकेट खोलते पहले, 0.5 इंटू 19 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर 0.3, तो वो सारा अवॉइड हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ AOS. तो आंसर इज व्हाट, 19%. 19% इज द आंसर. सो बेसिकली जो अपना नेक्स्ट LOS होने वाला है, उस LOS में फिर कैलकुलेशंस चालू हो जाते हैं. तो आई हैव सीन दैट वो कैलकुलेशंस के पहले अगर आपको ये पता रहे ना कैलकुलेटर का ये सारा चीज़, तो इट्स ऑलवेज स्मूथ, वरना वहाँ पे लॉजिक चल रहा है, फिर कैलकुलेशन सब में फ्रिक्शन खा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, ठीक है. तो देखो मैंने डाइवर्ट करके एक बार कैलकुलेटर का कुछ चीज़ें डिस्कस की है. कैलकुलेटर में और भी चीज़ें होती है जो स्टैटिस्टिक्स में काम आएगी. कहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन निकालना है, तो अपने कोई कॉलम बना बना के थोड़ी निकालेंगे. दिस इज नॉट दैट एग्जाम कि लॉजिकली कॉलम बना के 10 कॉलम वी मेक ऑल द स्टैट्स. विल डू इट थ्रू द कैलसी. तो स्टैटिस्टिकल मोड भी है, कैश फ्लो मोड भी है, दैट विल कम एज वी मूव अहेड, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ अभी क्लास, बिकॉज नेक्स्ट वाले पोर्शन में जाना पॉसिबल नहीं है. LOS A और LOS B अपना बढ़िया से हो गया है, ठीक है. तो components of rate and interpretation of required rate of return with some calculator का logic, ठीक है ना. ओके फ्राइडे एज यूजुअल डेरिवेटिव होता है ना अपना. हाँ, तो फ्राइडे डेरिवेटिव होगा. फर्स्ट क्लास करके आना है, जिसका नहीं हुआ है उसको.